Hi guys, I am Rahul Gupta, your expert of physics answer key TAT examination 2020. Today we will discuss in detail about the question paper which was asked in your exam of TAT 2020. So there are 30 questions. So please check up your answer key in your paper. So the first question is what our meter measure. So there is some confusion in this question. There are so many students which take electrical energy, but the answer is power. Actually, this is the meter which measure the electrical power in a circuit. So your answer is A. Your answer is electric power. The option is D. Okay, now we move to the question number 2. You has given a relation 1 Tesla. So the right answer is 1 Tesla is equal to 10 raised to the power of 4 Gauss. So your option is A. Tesla is the unit of magnetic field in SI and Gauss is the CGS unit of magnetic field. Okay, your question number 3. Bottom of container filled with liquid appears slightly raised because of the phenomenon of refraction of light. Suppose we have a coin, मैंने उसको पानी में डाल दिया तो हमारे को ऊपर नजर आएगा because of the phenomenon of refraction. So your answer is A. Your option is A. Okay, now we move to the question number 4. Waves which cannot travel in vacuum. So electromagnetic waves can travel in vacuum. For example, radio waves, ultraviolet waves, X-rays. These are the electromagnetic waves. But the question is which cannot travel in vacuum. So the answer is infrasonic wave. That is sound wave. So they require the material medium for its propagation. So your option is B, sound waves. Question number 5. A wire of 1000 ohm and length L is increased to twice of its original length. The new resistance is. So what are the variable? R1 is equal to 1000 ohm. Length, suppose we consider L, area we consider A. R2 we have to be calculate. Length, that is twice. Area, so first we calculate the area. You know the wire, the volume of the wire remains same. So it means A1 L1 is equal to A2 L2. So first area is equal to A1 A L1 L upon 2L. So we have this area is A by 2. Now what is the formula for R1 is equal to rho L1 by A1 and R2 is equal to rho L2 by A2. Dividing, so R2 upon R1 is equal to, this will cancel out and we have L2 A1 upon L1 A2. So put these values, so 2L A, L1 is L, A upon 2. This cancel out. So this means 4 times of the resistance, और resistance आपको given था, that is 1000. So your answer is 4000 ohm. So that is in your option, that is A. So I think clear. This is your question number 5. The option is A and the answer is 4000 ohm. Okay. Now we move to the question number 6. Velocity of light in medium is
1.5 into 10 to the power 8 meter per second. Its refractive index is. So refractive index is n is equal to c upon v. So put this value and we get n is equal to c upon v. C is the velocity of light, 3 into 10 to the power 8 upon velocity of medium, 1.5 into 10 to the power 8. So this cancel out and this will be your 2. So your option is D. Question number 7. Isothermal process occur at constant. Isothermal. Thermal means at constant temperature. So your answer is temperature. That is in your question paper. The option is C. Okay. Question number 8. The kinetic energy of body of mass 3 kg and momentum 2 Newton second is. So kinetic energy is equal to P square upon 2m. That is equal to आपको मोमेंटम दे रखा था 2, so 2 into 2 into mass आपको given था, that is 3. So this will be your option there, 2 by 3. So that is 2 by 3 joule. That is your option B. Now we move to the question number 9. A body of 100 gram is moving with velocity of 15 meter per second. The momentum associated of the body will be. So momentum is equal to the product of mass into velocity, and 100 gram is equal to 1 upon 10 kilogram into velocity 15 meter per second. So we have 3 upon 2. So that is equal to, the answer is 1.5. So 1.5 is your answer and that is your option B. Okay. Question number 10. कई आंसर की में गलत बताया है. The right answer is here. For a diatomic gas, the ratio of two specific heat of gas Cp by Cv is. अब ये क्योंकि डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए the degree of freedom is the formula is 3n minus k. So अगर ये मोनोटोमिक होती, so we put here n is equal to 1 and k is equal to 0, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आती. पर ये कैसी गैस है? डायटोमिक गैस. So diatomic gas के लिए n is equal to 2, तो 3 to the 6 and k is 1. So 5 degree of freedom. So the formula is, when we put energy is equal to F RT by 2. So degree of freedom is 5 RT upon 2. So this is your energy, and CV का formula है du upon dt. That is equal to, when we differentiate this, 5R upon 2. And now Cp, the relation is Cp minus Cv is equal to R. So Cp is equal to 5R upon 2 plus R. That is 7R by 2. So gamma is equal to Cp upon Cv, and that is equal to 7 by 5 is the ratio. That is 1.40 is your answer. तो कुछ आंसर की में 1.1 समथिंग लिखा है, दैट इज रॉन्ग. तो हमारा आंसर है 1.40. दैट इज योर ऑप्शन बी. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज. सो जो वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन से, दैट इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. That is the velocity, and that is the option B. Okay, now we move to the question number 12. Which of prism is used to see infrared spectrum of light? तो ऐसा कौन सा प्रिज्म है जिससे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पास होती है? That is a rock salt. So your option is rock salt.
So that is your option A. Okay. Question number 13. The average power dissipated in pure inductor, that is equal to 0. Your option is D. The concept is the average power associated in capacitor and inductor is always equal to 0. So that is your answer D. Okay, next 14th question. A light and heavy body have equal momentum. Which one has greater kinetic energy? So you know, kinetic energy is equal to P square upon 2m. तो मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जो लाइटर बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो योर आंसर इज लाइटर बॉडी। योर ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द मटेरियल इज मोर इलास्टिक? तो सबसे ज्यादा जो इलास्टिक है दैट इज द मटेरियल इज क्वार्ट्ज। तो दैट इज योर ऑप्शन डी। Question number 16. The force acting on a particle is always perpendicular to its velocity. Then the path of the particle will be. अब ये भी कई टीमें आंसर गलत दिया है। The answer is circular. Actually 3 ऑप्शंस होती है। जब चार पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तब तो कोई फोर्स नहीं लगती है। पर जब वो परपेंडिकुलर जाता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। और अगर वो 90, 0 डिग्री या 180 डिग्री के किसी अदर एंगल पर जाए तो उसका पाथ दैट इज स्पाइरल। दैट इज योर पाथ इज दिस, राइट? सो दिस इज द आंसर जो आपका ऑप्शन में होगा, दैट इज 16 का, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। आपको द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना था, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स सबको पता है। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको रेशियो पूछी थी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड आपके पास क्या रहना था, K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। आपके पास याद आना था। अब आपने वैल्यूज पुट करनी थी। K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू चार्ज इलेक्ट्रॉन का दिया था, तो 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 और मासेस 9.1 × 10⁻31 का होल स्क्वायर। So when you calculate, it will be 4 × 10⁻42. So your option is D. So this is the explanation of your question number 17. Okay, next. A capacitor acts as an infinite resistance. कैपेसिटर हमेशा ब्लॉक कर देता है डीसी को, क्योंकि उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो योर आंसर इज डीसी। योर ऑप्शन इज डी। एक्सप्लेनेशन, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 1/ω/c होता है, और दैट इज इक्वल टू 2π/c, और डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी हो 0 होगी, तो xc आपके पास कितना आया, इनफाइनाइट। सो दिस इज the explanation of your question number 18. Okay, now question number 19. According to Hooke's law of elasticity, if stress is increased, the ratio of stress to strain. Hooke's law बोलता है, कंसेप्ट क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। तो उन दोनों की रेशियो क्या आई, कांस्टेंट। तो योर ऑप्शन इज डी। Now question number 20. Spokes are used in a cycle. Spokes साइकिल में हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज करती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो योर ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 21. If mass of a body is m on the surface of earth, then mass of the same body on the moon will be. अब ये भी कई क्वेश्चन गलत करके आए हैं।
यहाँ पर मास की बात की है, तो मास रिमेन सेम। योर आंसर इज m, सो योर ऑप्शन इज ए। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला होता तब आपका ऑप्शन होता 1/6, बट यहाँ मास की बात की। अगर मेरा मास है 55 kg, तो मून पर भी 55 kg रहने वाला है, सो आंसर रिमेन m। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको जोड़े बनाने थे। तो पहली ऑप्शन थी रेन ड्रॉप्स आर सफेरिकल, तो रेन ड्रॉप सफेरिकल होती है सरफेस टेंशन के कारण। सेकंड था हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में जो फिनोमेनन यूज होता है वो बर्नौलीज थ्योरम का होता है। क्वार्ट्ज, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था विच इज द बेस्ट इलास्टिक इन नेचर, वो क्वार्ट्ज ही है, तो यहाँ भी क्या आनी चाहिए क्वार्ट्ज के लिए, परफेक्टली इलास्टिक। तो आपके दो क्वेश्चन यहीं से कवर हो गए थे। और लास्ट दिया था द सैंड इज ड्रायर देन द क्ले, तो दैट योर ऑप्शन इज कैपिलैरिटी। तो आपने इसका जब आप चेक करोगे तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 23 देखने को बहुत लंबा लग रहा है, बट जब आप देखेंगे इधर तो ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 23 था कि दो सॉलिड्स है ए और बी और वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर पर। तो जो सॉलिड ए है वो फ्लोट करता है हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स, और जो बी है वो 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो हमारे को डेंसिटी की रेशियो बतानी थी। तो जो इसमें कंसेप्ट लगा वो है अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। तो अप थ्रस्ट किसी भी बॉडी के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी जी। वेट भी mg के इक्वल होता है, तो mg कितना है, वॉल्यूम दैट इज v, और डेंसिटी दैट इज जो हमें कैलकुलेट करनी है से ρ1 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। हमारे फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एंड व्हेन वी फाइंड दिस g कैंसिल आउट एंड v कैंसिल आउट, तो हमारे पास ρ1 आ गया रो लिक्विड अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में आपको दिया था कि 2/3 हो जाता है भाई इसका वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वॉल्यूम v रो 2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो दिस विल कैंसिल आउट, वॉल्यूम कैंसिल आउट, तो वी हैव दिस रो 2 इज इक्वल टू 2/3 रो l। रेशियो बोली थी रो 1 बाय रो 2, सो this will cancel out and your ratio will be 3:4. So your option is C। कुछ ने जो है 4/3 करके आए होंगे, but answer is wrong. Your answer is 3:4. That is your option C. Next question is 24. बोहर मैग्नेटोन। तो बोहर जो मैग्नेटोन है उसकी वैल्यू EH अपॉन 2πm होती है। अब इसमें भी कईयों को कंफ्यूजन था, कई सोचते हैं कि EH अपॉन 4πm होती है। भाई होती है, पर वो वैल्यू अगर ऐसे नहीं होती है, H के ऊपर क्रॉस लगा था तब आपकी वैल्यू EH अपॉन 2πm होनी थी। अगर मैं इसकी H की वैल्यू ऐसे वाला H ले लेता तब ये 4πm होनी थी। तो बोथ आर करेक्ट, बट जहां पर कट लगा है आपके ऑप्शन में H के ऊपर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन ए होना था। क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्टिकल फाइबर आर रिलेटेड विद 4G में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो ऑप्टिकल फाइबर है, दैट इज यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। तो आपका ऑप्शन ए टिक होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी। सो अगर हम देखें दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ वो जो है 10 मीटर गया और ईस्ट की तरफ वो 20 मीटर गया, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दिस इज पाइथागोरस, तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, सो दैट विल बी योर 400 500 एंड 500 मींस 10 रूट 5, then it will be calculated, that will be 22.5 meter. So your option A is correct.
27 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। योर ऑप्शन इज सी। तो अगर हम इसको करके देखें, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो आएगा 4a डॉट b इज इक्वल टू 0। सो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन दिस हैपन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। किसी भी पाथ को जो बताता है वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके पाथ को अगर बताना है तो वो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताएंगे। तो योर ऑप्शन इज, दोनों करेक्ट थे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो योर ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स first half of a distance at a speed v1 and the second half at a distance v2, then the average velocity. So your formula for the average velocity is 2v1 v2 upon v1 plus v2. So this is the formula for average velocity. So your option A is correct. Last question था question number 30. The reason of shining of a air bubble water is. तो ये भी बहुतों ने गलत किया है। जो एयर बबल शाइन करता है वो डिस्पर्शन के कारण नहीं करता है। द रीजन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द रीजन इज, जब एयर बबल पार्टिकल के अंदर होता है तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में है वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है और मीडियम में स्पीड कम हो जाती है। तो वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है और दैट इज वाई वो जो सरफेस है दैट एक्ट एज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो गाइस, ये मैंने 30 क्वेश्चंस की डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दी। होप आपके आंसर मैक्सिमम ठीक हों। ये की मैंने एज ए एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स बनाई है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि ये 100% मेरी की करेक्ट होगी। सो प्लीज़ शेयर ऑन यूट्यूब। थैंक यू।